Very good morning, students. In this topic, we will learn about the types of computer. So, let's start. Welcome to Raghu International YouTube channel. Class 6, subject Computer Application, topic Types of Computer. Before before to type before to understand the types of computer, first we will understand what is abacus. I'm sure many of you will say that abacus was a first computer. I'm sorry, you are wrong here. Abacus was not a computer. Abacus was a first calculation machine. As you know, the definition of abacus, see this, is also called a calculating frame. Is a calculating tools that was in use in the ancient Near East, Europe, China and Russia countries before the adoption of the written Arabic numerical systems. एबेकस एक कैलकुलेशन मशीन थी जिसके द्वारा हम कैलकुलेशन कर सकते थे। ये बहुत ही अच्छा था, इसकी मैथोलॉजी बहुत अच्छी थी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट कंप्यूटर था, सो इट दैट इज़ रॉन्ग। कंप्यूटर ही पहले कैलकुलेशन ही करता था, बट कंप्यूटर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पर ही चला है। लेकिन एबेकस जो था उसे किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं थी और वो कहीं भी ले जाया जा सकता। सो दैट्स वाई एबेकस वॉज अ कैलकुलेशन मशीन। इट वॉज ईजी टू हैंडल, but in the comparison of computer, it was not a computer, it was just a simple calculation machine. So let's begin to the topic. The types of computer. First, microcomputer, mini computer, mainframe computer, and 4 is supercomputer. All the types of computers we will in the definitions area we will understand. Okay, first we will start from microcomputer. So the definition: microcomputer. A microcomputer is a very small, relatively inexpensive computer with a microprocessor as its central processing unit. It includes a microprocessor, memories and minimal input-output circuitry mounted on a single printed circuit board. जो आज के हम समय में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। एज यू नो दैट लैपटॉप्स, PC, all the computer has called microcomputers. ये बाकी कंप्यूटर की अपेक्षा काफ़ी सस्ते होते हैं और आकार में भी छोटे होते हैं। That's why it's called microcomputer. Micro means small. Okay, I hope you understand. The all office computers which we work, that's called microcomputers. Let's begin to the example of microcomputer. As you see, this is the example of microcomputer. Notebook, smartphones, laptops. As I told you, the computer is the machine which get the input, process the data and give us the output. इसी प्रकार मोबाइल भी हमसे इनपुट लेता है, जिसे हम बटन की प्रेस करते हैं, उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद इट गिव्स अस दैट आउटपुट एंड वो आउटपुट देता है। इस प्रकार हम कंप्यूटर, एक मोबाइल को भी, स्मार्टफोन को भी एक कंप्यूटर कह सकते हैं। और लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, इज अ माइक्रो कंप्यूटर्स। एंड डेस्कटॉप इज अ वेरी कॉमन कंप्यूटर विच वी आर यूजिंग राइट नाउ। एंड नोटबुक ऑल्सो अ कंप्यूटर, ओके, इज अ माइक्रो कंप्यूटर। सो नेक्स्ट, mini computers. A mini computer, colloquially mini, is a class of smaller computer that was developed in the mid of 1960 and sold for much less than mainframe and mid-sized computer from IBM and its direct competitors. तो मिनी कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर की ही तरह कंप्यूटर्स होते हैं, बस ये थोड़े आकार में थोड़े बड़े होते हैं और इसमें प्रिंटर्स ज़रूरी होते हैं। इसमें प्रिंटर्स और बाकी मशीनें इनबिल्ट होती हैं, इस कारण ये कंप्यूटर थोड़े महंगे हो जाते हैं। तो मिनी कंप्यूटर भी थोड़ा एडवांस है माइक्रो कंप्यूटर का। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि मिनी कंप्यूटर कैसे होते हैं। सो दिस इज़ अ मिनी कंप्यूटर एज आई टोल्ड यू, and there is a one thing that we have to notice in the mini computer. Lots of computers
इन द मिनी कंप्यूटर्स इन मैनी कंप्यूटर्स हैज़ बीन कनेक्टेड। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव है, इसमें अंदर बहुत बड़ा CPU है एंड टाइप ड्राइवर्स हैं। इसमें हम बहुत से कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से हैंडल कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर हैज़ टू वर्क टू हैंडल सो मैनी कंप्यूटर्स इन विच फ्रॉम द वन कंप्यूटर्स इट इज़ आर कनेक्टेड विद द लैन। तो मिनी कंप्यूटर्स एक लैन के थ्रू बाकी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, लेकिन इसका CPU सिर्फ एक होता है जिससे बाकी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है और डाटा अपने अंदर सभी कंप्यूटर का अपने अंदर एक ही कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मिनी कंप्यूटर। सो लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट। Mainframe computers. What is a mainframe computers? So mainframe computers or mainframes are computers used primarily by large organizations for critical applications, bulk data processing such as sensors, industries and consumer statistics, and enterprises resources planning and transaction processing. अब जो mainframe कंप्यूटर होते हैं इसके ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ मशीन्स होती हैं और मशीनों को हैंडल करने के लिए दैट वी आर यूज़ mainframe कंप्यूटर्स। अब ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से, और ये काफ़ी महंगे भी होते हैं। दैट्स नोबडी there's a lots of people here doesn't use it because it's basically work in the iron industries and in the big industries एंड ऑल्सो इट इज़ वर्क इन द सिक्योरिटी लेवल्स। बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ कंपनीज होती हैं वही mainframe कंप्यूटर को यूज़ करती हैं अपनी कंपनीज में हाई सिक्योरिटीज़ रखने के लिए। सो इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ mainframe computers। एज यू सी दैट it is very large in the size from mini computers and micro computers. See this? So there is no keyboard, there is no mouse which we are handling, but it is very high calculation machine. It is very high speed instead of other micro and mini computers. तो इन कंप्यूटर की जो कि सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी स्लो होती है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर की स्पीड उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके बाद mainframe की उससे बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद इन द लास्ट वी आर गोइंग टू द सुपर कंप्यूटर। इट इज़ वेरी हाई एफिशिएंसी, वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स विच वी कैन एवर अंडरस्टैंड। तो आप समझ गए होंगे mainframe कंप्यूटर का बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, सिक्योरिटीज़ एरियाज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये काफ़ी महंगे होते हैं, इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट इज़ वेरी लार्ज इन द साइज़। So let's do the next computer. It's called supercomputer. A supercomputer is a computer with a high level of performance as compared to a general purpose computer. The performance of a supercomputer is commonly measured in floating point operations per second instead of million instruction per second. अब जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से दी जाती है, जो कि कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा है। ये कंप्यूटर्स वो गणनाएं तक कर सकता है जो कि कोई मशीन या ह्यूमन की ब्रेन के अंडर नहीं है। सो सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी इफेक्टिव, वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स। और स्टूडेंट्स ये इतने महंगे होते हैं कि इन्हें कोई देश अफोर्ड नहीं कर सकता, इन्हें बनाने का बहुत खर्चा होता है, जो कि एक देश के कहीं ज़्यादा GDP या पैसे देखा जाए तो उससे भी कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए हर देश इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। ऐसे कई विश्व के अंदर 200 से ज़्यादा देश हैं, उनमें से 17-18 देश होंगे विच वी आर हैंडल द सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर के बहुत काम होते हैं, इनमें से कुछ कामों पे हम नज़र डालते हैं। फर्स्ट हम आपको दिखाते हैं द डायग्राम ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स हैज़ लुक लाइक दिस। इट्स वेरी लार्ज इन द साइज, वी कैन नॉट expand as you can see this the picture of supercomputer. It's an Indian supercomputer. Okay, now go through for the work of supercomputer. What are the uses of supercomputer? And as you can see that the list of Indian supercomputers: the Aditya, as you all know that, the CDAC, Param Yuva, Siddharth, Param 8000, Param 10000 and so many. Here we are discussing about the supercomputer. It's a very high speed computers. Now let's go for the uses of supercomputer.
द यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च। एटॉमिक रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ जो वेपन्स बनते हैं उन वेपन्स को किस तरह से बनाया जाए, डिज़ाइन किया जाए, क्या क्या क्वालिटी उनमें डाली जाए, वो सब सुपर कंप्यूटर के द्वारा मेंटेन की जाती है। सेकंड, हाई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस। कहीं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पेस, देयर आर सो मैनी हाई कैलकुलेशंस आर देयर। सो इन कैलकुलेशन की गणना करने में कि मून्स कितनी दूर है, सैटेलाइट कितनी दूर में चक्कर लगाएगा, ये सब ऑल द कैलकुलेशन ओनली कैन बी हैपन विद द सुपर कंप्यूटर्स। थर्ड इज़ मेकिंग सैटेलाइट्स। सैटेलाइट उपग्रह बनाने में जो हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो बनाने में भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेकिंग वेदर रिपोर्ट्स, कहाँ कहाँ बारिश होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, बारिश कितनी होगी, ये सब सुपर कंप्यूटर के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 स्पेस रिसर्च। इन द स्पेस रिसर्च कंप्यूटर हमारे अंतरिक्ष में जो भी हलचल होती है सभी को देखने के लिए दैट वी आर यूज सुपर कंप्यूटर। एंड द एटॉमिक वेपन्स, फॉर टू मेक एन एटॉमिक वेपन्स वी यूज सुपर कंप्यूटर। 7 कंट्रोल एटॉमिक वेपन्स। जैसे कि सभी जानते हैं बहुत से देशों के पास, भारत के पास भी हमारे पास परमाणु हथियार है। अगर उन सभी को हथियारों का हमें हैंडल करना है, कंट्रोल करके रखना है, दैट वी आर हैव टू यूज सुपर कंप्यूटर्स। इफ़ यू हैव अ एटॉमिक weapons, you must have the supercomputers. I hope you understand all the types of computers. First, micro. Second, mini. Third is mainframe. And fourth is super. Very good. So I hope you enjoy the session. Thank you so much. The class is over now. And one question for you. What is the name of the first supercomputer? If you know the answer. Please write down in the comment sections. पहला सुपर कंप्यूटर इंडियन का नाम क्या था? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखना। आई विल चेक। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।